Good morning, students. In last class, we have already covered the topic genetic code and mutation, and today we have started with the translation, that is the protein synthesis. Protein synthesis. Translation means translation from RNA to formation of the RNA, formation of the protein from RNA. That is known as translation. In this translation process, there is a it is a RNA directed polypeptide synthesis process. Polypeptide means proteins. They are the polypeptides. So RNA directed means कि RNA के through जो है वो प्रोटीन का synthesis होता है. So that's why that is called as the RNA directed polypeptide synthesis. Steps, they are having a 4 steps they are following. First one is a initiation, second one is a elongation, third one is a termination, and last one is a post translation process. Initiation. In translation process, there are required ribosomes, that is 50s to 30s unit इसमें होनी चाहिए. Next is a ribosomal RNA. Next one is a tRNA. Next one is a mRNA, and last one is a amino acid. These all are required for the synthesis of the translation process. Ribosome. It is a it is the ribosome are what? It is the cell organelle made for the protein. 35% protein and 65% of RNA are from ribosome. It is a nucleoprotein present in the cytoplasm. Has internal sites for the two tRNA molecule. It has a two sites for the tRNA molecules. It has a two internal sites for the tRNA molecule, for the two tRNA molecule. राइबोसोम. तो राइबोसोम इसमें राइबोसोम की जरूरत होती है जिसमें 50s 30s यूनिट होती है और इट इज मेड अप ऑफ द प्रोटीन. 35% प्रोटीन होता है, 65% जो है इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है. इट इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड इट हैज अ इंटरनल साइट ऑफ द टू टीआरएनए मॉलिक्यूल. So prokaryotic ribosomes, it is 18 nanometer in the size, and that is the 70s, and large subunit having the 50s. इसमें 35 प्रोटीन्स होते हैं, एंड इसके बाद 5s एंड 20s जो है वो राइबोसोमल आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है. स्मॉल सब यूनिट में 30s की सब यूनिट में 21 प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और 16s की राइबोसोमल यूनिट इसमें होती है. इन यूकैरियोटिक देयर इज इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, दैट इज द 23 नैनोमीटर का साइज होता है. एट 80s जो बेसिकली राइबोसोम्स में जो यूकैरियोट्स है उसमें राइबोसोम्स 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. इसकी भी टू सब यूनिट डिवाइडेड है, 60s और 40s. On 60s there is a 49 proteins is present, plus 5s 5.8s and 28s ribosomal RNA इसमें present होते हैं. एंड 40s सब यूनिट जो होती है उसमें 23 प्रोटीन्स एंड 18s राइबोसोमल आरएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं. AP site on the ribosomes. AP site on ribosomes. Ribosomes has a two binding site. Ribosomes has a two binding site for the tRNA, P site and A site. दो साइट होती है इसमें, P site और A site. Together they have covered two neighboring codons. तो दो नेबरिंग कोडॉन्स को ये कवर करते हैं. एंड पी साइट बाइंड, क्या पी साइट में क्या होता है? इट कोडॉन इज ऑक्यूपाइड बाय द पेप्टाइडल टीआरएनए. codons is occupied by the peptidal tRNA. This tRNA carries the chain of the amino acid that has already been synthesized. तो इसमें जो राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो अलग अलग सेपरेट पोर्शन होते हैं जिसमें एक टीआरएनए और दूसरा टीआरएनए होता है. पी साइट और ए साइट कहलाता है. तो पी साइट होता है उसमें वो पेप्टाइडल टीआरएनए की साइट होती है, मतलब कि जिसमें ऑलरेडी जो सिंथेसाइज हो चुके हैं चेन अमीनो एसिड की, और टीआरएनए से जो बाइंड है वो उसमें अटैच होता है वाला टीआरएनए. और एक साइट ए साइट जो होती है, इट इज इनकमिंग द
अमीनो एसिड टीआरएनए इज डायरेक्टेड बाय द कोडॉन। मतलब इसमें जो अमीनो एसिड आते हैं या फिर जो कोडॉन के थ्रू जो अमीनो एसिड डायरेक्ट होते हैं कि भाई अब ये अमीनो एसिड जो है इस टीआरएनए में बाइंड होगा, वो अमीनो एसिड जब यहाँ पे आके बाइंड होता है तो वो वाली साइट में नए वाले अमीनो एसिड बाइंड होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ ए साइट। So this codon is specific the next amino acid to be added on the growing peptide chain. इस तरह से दो साइट्स होती है, ये देखिए पी साइट एंड ए साइट। यहाँ पे जो टीआरएनए अटैच है वो ऐसा टीआरएनए होता है जिसमें ऑलरेडी जो अमीनो एसिड अटैच हो चुके हैं वो वाले अमीनो एसिड वाला टीआरएनए अटैच होता है। ये साइट जो होती है हमेशा नए कोडॉन्स के लिए होती है, नए कोडॉन को रिकॉग्नाइज करके और उससे रिलेटेड जो अमीनो एसिड है उसको एक्सेप्ट करके वो वाले टीआरएनए को यहाँ पे बाइंड करती है। तो इस तरह से ये जो होगी, ये लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है, इट इज अ स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। तो इसमें लार्ज सब यूनिट जो होती है उसमें दो चैम्बर्स होते हैं बेसिकली, ए साइट और पी साइट। अब ट्रांसफर आरएनए या टीआरएनए जो है वो किस तरह का है, हमको पता है कि हमें पहले से ही पता है कि टीआरएनए की जो एक आर्म होती है दैट इज द एक्सेप्टर आर्म, ये अमीनो एसिड आर्म कहलाती है। इस आर्म में अमीनो एसिड जो होते हैं आके अटैच हो जाते हैं। इसका जो सबसे अपर अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म जो होती है, इसमें अपर जो है सबसे टॉप मोस्ट पे होता है सीसीए ट्रिपलेट कोडॉन होता है इसमें, एंड इट इज अ एंटी कोडॉन आर्म और इट इज अ कोडॉन आर्म। एंटीकोडॉन आर्म, इट इज एंटीकोडॉन आर्म। इसमें क्या होता है कि ये जब एमआरएनए के ऊपर जब ये टीआरएनए को रन करते हैं, ये एमआरएनए जब टीआरएनए के ऊपर रन होता है तो ये एंटीकोडॉन आर्म जो होती है ये उसको रीड करती है। एंटीकोडॉन आर्म जो है कि उस कोडॉन को रीड करके और इस तरह से ये एंटीकोडॉन, इससे रिलेटेड एंटीकोडॉन यहाँ पे आके बाइंड हो जाते हैं और ये एंटीकोडॉन जो है ये एंटीकोडॉन जो है इसको सिग्नल भेजते हैं या इसको सिग्नल भेजते हैं कि भाई ये जो है कौन सा जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पे इससे इससे रिलेटेड अमीनो एसिड यहाँ पे आके बाइंड होगा। फिर है अमीनो एसाइल amino acyl tRNA synthetase enzyme. Enzyme required for the attachment of the amino acid to their corresponding tRNA. क्या होता है, tRNA फ्री फॉर्म में होते हैं जब एंटीकोडॉन आर्म जो है जब सिग्नल भेजती है एक्सेप्टर आर्म को, तो ये अमीनो एसिड उससे अटैच होने के लिए, उस सीसीए आर्म से अटैच होने के लिए इसको क्या चाहिए, एक एंजाइम की जरूरत होती है, दैट इज द अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ द एन अमीनो एसिड टू द 3' एंड ऑफ द टीआरएनए रिक्वायर्ड एटीपी, इसके लिए एटीपी की जरूरत होती है। एक्सट्रीम स्पेसिफिसिटी होती है इसकी एंड हाई फिलिडिटी होती है ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द जेनेटिक मैसेज। एंजाइम आल्सो हैव अ प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग एक्टिविटी that can remove the mischarged amino acid from the enzyme or the tRNA molecule। तो इसकी जो ये जो एंजाइम है इट इज वेरी specific and it is also have a ability to proofreading and editing also। and इस तरह से ये 3' एंड पे जो है एक्सेप्टर आर्म पे जाके जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है जो एंटीकोडॉन आर्म में जो सिग्नल्स जो एंटीकोडॉन आर्म में जो कोड करके जो अमीनो एसिड को भेज रही है उसको ही ये एक्सेप्ट करता है बाय द अमीनो एसिड टीआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ द एटीपी। देयर इज it is anticodon UCG। There is a traditional base pairing observed in the first and second position of the codon। ठीक है, टीआरएनए एंड एमआरएनए। टीआरएनए की जो है AGUC एंड एमआरएनए की UCAG, क्योंकि एमआरएनए UCAG UCAG, it is a traditional base pairing। Non-traditional base pairing is possible between the third position of the codon of the first and 5 position of the anticodon। There is a tRNA and mRNA AGUC UCU AG, इस तरह से AU, G की जगह C या U कुछ भी आ सकता है,
यू की जगह ए या जी कुछ भी आ सकता है, सी की जगह जी। एडेनिन के साथ में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल। ग्वानिन के साथ में साइटोसिन एंड यूरेसिल, यूरोडीन के साथ में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ में ग्वानिन। तो ट्रेडिशनल बेस पेयरिंग हमको पता है, एडेनिन के साथ हमेशा ऑलवेज जो है यूरोडीन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ ऑलवेज साइटोसिन जुड़ता है, यूरोडीन के साथ ऑलवेज एडेनिन जुड़ता है, और साइटोसिन के साथ ग्वानिन ऐड होता है। इसी तरह पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये तो सेम है, बट ग्वानिन के साथ में साइटोसिन और यूरोडीन दोनों जुड़ सकते हैं, यूरेसिल। यूरोडीन के साथ एडेनिन, ग्वानिन। इस तरह से ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल बाइंडिंग जो इसके थ्रू होती है, तो ये एंटी कोडॉन जो है इसको, ये एमआरएनए मॉलिक्यूल है, इस तरह से ये टीआरएनए जो है इसको रीड करता है, और रीड करके जो है ये एक्सेप्टर आर्म के थ्रू जो है यहाँ पे एसीसी जो है सेरीन यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। इनिशियल फर्स्ट जो स्टेज है ट्रांसलेशन की, दैट इज द initiation. Ribosomal subunit assemble on the mRNA, rRNA, it's bind of the mRNA. तो सबसे पहले क्या होता है कि जो राइबोसोमल या सब यूनिट है वो रेडी होती है, और वो क्या करती है, वो mRNA को अपने साथ में बाइंड करती है। तो ये होती है इनिशिएशन प्रोसेस में। सेकेंड वन इज द एलोंगेशन प्रोसेस। देयर इज अ टीआरएनए विद द एप्रोप्रिएट एंटीकोडॉन लूप्स बाइंड्स टू द कॉम्प्लेक्स। तो टीआरएनए जो है वो एंटीकोडॉन लूप्स के साथ में टीआरएनए जो है वो बाइंड हो जाते। दे हैव अमीनो एसिड अटैच done by other enzyme, amino acid transfer from the tRNA to TRA1 process repeated। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। टर्मिनेशन में द टीआरएनए विद द स्टॉप कोडॉन बाइंड टू द राइबोसोम्स, नो अमीनो एसिड अटैच टू द टीआरएनए, complex falls apart। First is the initiation process. Involve the assembly of the components of the translation system before the peptide bond formation occurs। कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए इसके लिए असेंबली के लिए? पहले तो 2 राइबोसोमल की सब यूनिट्स चाहिए, एमआरएनए टू बी ट्रांसलेटेड, जिस भी एमआरएनए या जो भी प्रोटीन हमको चाहिए, जो भी डिजायर प्रोटीन उससे रिलेटेड जो एमआरएनए है वो चाहिए। द अमीनो एसिड टीआरएनए स्पेसिफाइड बाय द फर्स्ट कोडॉन इन द मैसेज। ठीक है, तो जो मैसेंजर मतलब मिथ्योनिन से सबसे पहले शुरू होता है, तो सबसे पहले अमीनो एसिड टीआरएनए चाहिए क्योंकि फर्स्ट कोडॉन को रीड करेगा। फिर है जीटीपी फॉर द एनर्जी एंड इनिशिएशन फैक्टर इन द प्रोकैरियोट। देयर इज द 3 इनिशिएशन फैक्टर, दैट इज द इनिशिएशन फैक्टर नंबर 1, इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2 एंड इनिशिएशन फैक्टर नंबर 3। इन यूकैरियोट देयर इज ओवर एंड द 10 इनिशिएशन फैक्टर एंड इसको इस यूकैरियोट्स के लिए यूज करें, इसलिए इसमें आगे जो है ई लगा होता है। तो जहां भी अगर ई लगा हुआ है इट मींस इट शोज द यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। शाइन डलमेंगो सीक्वेंस हमने भी पहले भी देखा था, पहले हमने पढ़ चुके हैं कि शाइन डलमेंगो सीक्वेंस जो होते हैं वो प्यूरिन्स रिच सीक्वेंसेस होते हैं, जिसमें कंटिन्यूअस जो है प्यूरिन्स जो है एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं, है ना। इसको कोजैक सीक्वेंस भी बोलते हैं। इट इज अ प्यूरिन रिच सीक्वेंसेस, जैसे कि यू ए जी 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 ए, दिस ऑल आर द प्यूरिन्स। 6 to 10 base pairs upstream of the initiation of the AUG। हमको पता है कि AUG codes for the it codes the methionine amino acid। तो AUG is the initiation codon। जो इनिशिएशन कोडॉन है इसके अब स्ट्रीम से मतलब आगे की तरफ जो है प्यूरिन दे सीक्वेंस और शाइन डलग्रेनो जो सीक्वेंस है ये इसके आगे अटैच होता है नियर द एमआरएनए एंड द 5' एंड 5' एंड की तरफ आगे की तरफ या 5' एंड की तरफ जो इनिशिएशन सीक्वेंस है दैट इज द शाइन डलग्रेनो सीक्वेंस जो होता है वहां पे होता है। और उसके बाद जो है वो AUG दैट इज द ट्रिपलेट व्हिच इज कोड्स द methionine। फिर 16s ribosomal RNA of the 30th ribosomal subunit has
complementary base pairs at the 3' end. 16 sRNA of the 30th ribosomal subunit has the complementary base pair of the 3' RNA, facilitating the binding of the 30th ribosomal subunit on the mRNA. वो 30th जो स्मॉल सबयूनिट है वहां पे जाके ये जो mRNA है वो वहां पे जाके 30th राइबोसोमल सब यूनिट में बाइंड हो जाता है। इसमें भी हमने देखा था कि जो राइबोसोम्स थे उसमें दो सब यूनिट थी, 50S और 30S। तो उसमें भी जो 30S थी उसमें भी जो है राइबोसोमल आरएनए और कुछ परसेंटेज जो था वो प्रोटीन्स का था, दैट इज द 16S राइबोसोमल आरएनए ऑफ द 30th राइबोसोमल सब यूनिट हैज अ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स एट द 3' एंड। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं 3' एंड पे mRNA के, और 16S राइबोसोमल यूनिट के ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स है, इसलिए ये जो राइबोसोम्स में जो mRNA है वो वहां पे जाके अटैच हो जाता है। In eukaryotes, in eukaryotes there is a 40S ribosomal subunit binds to the cap structure at the 5' end of the mRNA by the initiation factor number 4 and moves down the mRNA until it encounters the initiator AUG. This scanning process requires the ATP. तो क्या होता है कि ये तो हो गया प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में क्या होता है 40S सब यूनिट्स में जो 5' एंड होता है वहां पे कैप स्ट्रक्चर होता है। इस कैप स्ट्रक्चर को जो इनिशिएशन फैक्टर नंबर 4 है उसको रिमूव करके और जो mRNA है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है, और जब तक कि AUG नहीं आ जाता तब तक कि ये यूकैरियोट्स में ये स्कैनिंग जो है प्रोसेस चलती रहती है, और इस प्रोसेस के लिए ATP की जरूरत होती है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में ऑलवेज इसमें शाइन मतलब प्यूरिन रिच रीजन आगे की तरफ होता है, उसके बाद में इनिशिएशन या ट्रिपलेट कोडॉन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये ट्रिपलेट कोडॉन जब 5' एंड की तरफ ये जब ट्रिपलेट कोडॉन जब इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है तो ये जो पूरा mRNA है वो कहाँ पे स्मॉल सब यूनिट में जाके अटैच हो जाता है। कहाँ पे भी स्मॉल सब यूनिट में जो 60S राइबोसोमल आरएनए की सब यूनिट होती है उसमें उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं, वहां पे जाके ये अटैच हो जाता है या रुक जाता है। ये देखिए 16S राइबोसोमल आरएनए, ये पूरा राइबोसोम है, राइबो स्मॉल सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट, ये मैसेंजर आरएनए है जो कि जिसको कि हमको डिकोड करना है। और ये हमने देखा था कि 5' एंड की तरफ जो है वो प्यूरिन रिच रीजन दैट इज द शाइन डल ग्रेनो जो सीक्वेंस है ये है, और यहाँ पे ये AUG है। जब ये स्मॉल सब यूनिट में आता है तो स्मॉल सब यूनिट में जो 16S राइबोसोमल आरएनए है, 16S राइबोसोमल आरएनए, और ये तो बाकी प्रोटीन पार्ट है, ये 16S राइबोसोमल आरएनए जो है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर जो है यहाँ पे जुड़ जाती है 3' एंड पे, और इस तरह से ये जो यहाँ पे जो है स्टेबल हो जाता है 30th राइबोसोमल यूनिट में। Initiation codon that is the AUG is recognized by the initiator of the tRNA. Recognition is facilitated by the initiation factor number 2 bound to the GTP. ये इसके लिए जो है रिकॉग्निशन के लिए क्या चाहिए, इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2 चाहिए इसके लिए, और जो कि GTP के साथ में ऑलरेडी बाइंड होता है। इनिशिएटर tRNA enters the ribosomal P site पे अटैच होगा, GTP is hydrolyzed to GDP। AUG is recognized by the initiator tRNA। AUG जो है जैसे ही आपका mRNA जाएगा, ठीक है, mRNA mRNA में जो AUG साइट है ये यहाँ पे आपकी स्मॉल सब यूनिट है, इसके जस्ट ऊपर जो है वो क्या होती है लार्ज सब यूनिट है, उसमें A साइट और P साइट दो साइट्स होती हैं। तो P साइट में तो जो P साइट होती है वहां पे दो साइट है, हाँ ये P साइट है, ये A साइट है। तो जो P साइट है यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही
इनिशिएटर मतलब AUG जब यहाँ पे आया तो जो ये सिग्नल भेजेगा, और सिग्नल भेज के जो tRNA है जो कि जिसमें कि मिथ्योनिन अटैच है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, है ना, पी साइट पे, पी साइट में अटैच हो जाएगा। और इसमें जो इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2 से जो DTP था वो कैसे, GTP जो है रिमूव होकर GDP में कन्वर्ट होगा, तो जो एनर्जी जो रिलीज होगी उसके थ्रू वो पी साइट पे आके अटैच हो जाएगा। इनिशिएटर tRNA कैरीज एंड फॉर्मालाइटेड मिथ्योनिन, मिथ्योनिन पता है हमको कि मिथ्योनिन को कोड करता है, तो मिथ्योनिन होगा। एंड 10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट एज अ कार्बन डोनर, इट इज एक्ट एज अ कार्बन डोनर। In eukaryote, the initiator tRNA carries a methionine that is not formulated. ये सब ये किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में इस तरह की कोई जरूरत नहीं होती, दैट इज नॉट अ फॉर्मुलेटेड। इस तरह से ये जो tRNA है इसमें मिथ्योनिन ये अटैच है, ये जाके जो है पी साइड पे जाके N10 फॉर्माइल, ये प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, जनरेशन ऑफ द इनिशिएटर N10 फॉर्माइल मिथ्योनाइल tRNA, F मिथ्योनाइल tRNA, N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ट्रांसफॉर्माइलेज की प्रेजेंस में N फॉर्माइल मिथ्योनिन इस तरह से बन जाता है। और ये जो है मिथ्योनिन ये कहाँ जाके अटैच होता है, हो जाता है पी साइट पे जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है पेप्टाइड tRNA साइट। इट इज अ लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट है। अब ये है इट इज ए साइट, दैट इज द अमाइनो एसाइल tRNA साइट। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया है कि ये मिथ्योनिन जो है, ये मिथ्योनिन वाला tRNA है जो यहाँ पे आके AUG UAC, और ये इस तरह से मिथ्योनिन जो है यहाँ पे अटैच हो गया आके। अब इसके बाद क्या होगा, ए साइट जो है वो ब्लैंक है ना। तो ये इनिशिएशन प्रोसेस में क्या है, ये प्रोकैरियोट्स की प्रोसेस है, यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। मिथ्योनिन ये जो मिथाइल या N फॉर्माइल या M मिथाइल मिथाइल फॉर्माइल मिथाइल मिथ्योनाइल tRNA का सिंथेसिस नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट मिथ्योनिन जो है वो आके बाइंड हो जाता है। ये प्रोकैरियोट्स के इनिशिएशन की प्रोसेस है जिसमें कि N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो ट्रांसफॉर्माइलेज की प्रेजेंस में N फॉर्माइल मिथ्योनिन बनाता है, N फॉर्माइल मिथ्योनिन बनाता है। तो ये इसी इनिशियल जो प्रोकैरियोट्स का दिखा रहा है कि मिथ्योनिन tRNA जो है GTP और एलोंगेशन फैक्टर नंबर 2 ये सब तीनों एक साथ मिलके, और ये जो स्मॉल सब यूनिट है यहाँ पे जाके स्मॉल सब यूनिट के ऊपर लार्ज सब यूनिट में पी साइड पे जाके अटैच हो जाएगा। 40s राइबोसोमल यूनिट, 40s एलोंगेशन फैक्टर नंबर 3 एंड ई जो ई की जो बात हो रही है दैट इज द यूकैरियोटिक 1। इस तरह से फैक्टर नंबर 4 ATP से ADP में कन्वर्ट होगा, फिर ये UAC के साथ में बाइंड होके इनिशिएशन फैक्टर नंबर 5, इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2 60s जो यूनिट है दैट इज, और ये फाइनली ये जो है यहाँ पे आके 80s सब यूनिट जो है फाइनली आके अटैच हो जाएगी और 80s राइबोसोम। इस तरह से पूरा पूरा जो है स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट और tRNA, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA ये सब जो है एक साथ आके बाइंड हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अमाइनो एसिड tRNA बाइंड टू द ए साइट। अब क्या होगा, AUG के बाद मान लीजिए GCC है, ठीक है, GCC यहाँ पे ऑलरेडी मिथ्योनिन अटैच हो चुका है। तो जब जैसे ही ये फिर थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेगा या मूव करेगा mRNA या आगे की तरफ मूव करेगा, तो GCC से रिलेटेड जो भी tRNA है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। तो ये अर्जिनिन है, फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म। तो जैसे ही ये यहाँ पे आके ऐड होगा तो ये पहला पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। फर्स्ट इनिशिएशन इज कंप्लीट। फिर दूसरा है एलोंगेशन, एडिशन ऑफ द अमीनो एसिड टू द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन। Addition of the amino acid to the carboxyl end of the growing chain. Ribosome moves from the 5' end to 3' end of the mRNA that is being translated. The new amino acid tRNA for the next triplet codon appears in the ribosomal A site is facilitated by the elongation factor TU, elongation factor TS, and elongation factor number G, and requires GTP for the hydrolysis. After the peptide bond has been formed, the ribosomes moves to next triplet codon towards 3' end of the mRNA. This process is known as translocation. जैसे पेप्टाइड बॉन्ड होगा
तो जो राइबोसोम है वो नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन की तरफ चला जाएगा, जो कि 3' एंड की तरफ है। तो ये जो क्या हो गया, एक ट्रिपलेट को कोड कर लिया, फिर उससे रिलेटेड अमीनो एसिड ऐड हो गया ए साइड पे, फिर वो चला गया कहाँ पे, बी साइड पे चला गया। बी साइड से फिर जो उसने अपना जो पूरा पेप्टाइड है वो उसको ट्रांसफर करा और वो रिमूव हो गया वाला टीआरएनए। तो इस तरह से एक एक करके जो है टीआरएनए ऐड होते जाते हैं और ये वाला जो है वो रिमूव होता जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, ट्रांसलोकेशन, जिसमें कि एमआरएनए जो है, एमआरएनए जो राइबोसोम्स है वो ट्रिपलेट कोडॉन की तरफ मूव करता है एट द ट्रिपलेट कोडॉन on the mRNA base at the 3' end. This cause movement of the uncharged tRNA into the ribosomal E site and the movement of the peptide tRNA into the P site. इस तरह से ये देखिए 5' एंड है, ये 3' एंड है। यहाँ पे एक राइबोसोम जो है उसमें एमआरएनए में यहाँ पे अटैच हुआ, फिर ये ग्रोइंग पेप्टाइड चेन धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये जो तीन चैम्बर्स होते हैं यहाँ पे, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। जैसे ये ट्रांसफर हुआ तो ये खाली हो जाता है जो टीआरएनए, फिर ई साइट पे चला जाता है और यहाँ से रिमूव होता जाता है इस तरह से। फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन अकर व्हेन द वन ऑफ द 3 टर्मिनेशन कोडॉन मूव्स इनटू द ए साइड। तीनों में से एक जो टर्मिनेशन कोडॉन है, यूएए, यूएजी एंड यूजीए, देयर इज अ टर्मिनेशन कोडॉन। इसके लिए जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरएफ फैक्टर या फिर टर्मिनेशन फैक्टर या फिर इसको रिमूविंग फैक्टर भी बोलते हैं, 1 एंड रिमूव फैक्टर नंबर 2 जो है यूए और यूएजी के लिए, और 2 जो है यूए एंड यूजीए के लिए यूज होता है। ये इंक्लूड्स द RF includes the peptidal transferase to hydrolyze the bond linking the peptide to the tRNA at the A site, causing the nascent protein to the release from the ribosome. RF3 bound to the GTP and cause release of the RF1 or RF2 at the GTP is hydrolyzed. तो फाइनली क्या होता है कि जैसे ही टर्मिनेशन फैक्टर या आरएफ फैक्टर जो है यहाँ पे आता है, कब आता है, ये कब आता है, जब कोई तीनों में से कोई भी एक एंटीकोडॉन जो है जब यहाँ पे आ जाए, जैसे कि यूएए, यूएजी, यहाँ पे यूएजी आ गया। व्हेन द ट्रांसलेशन रीचेस द स्टॉप कोडॉन, आरएफ बाइंड यहाँ पे आके ए साइड पे आरएफ बाइंड हो जाता है। विदिन ए साइट रिकॉग्नाइज द स्टॉप कोडॉन, ये स्टॉप कोडॉन को रिकॉग्नाइज करता है। आरएफ catalyze the hydrolysis of the completed polypeptide from the polypeptide tRNA and the entire complex dissociate। तो जैसे ही ये यहाँ पे आता है तो पूरा के पूरा जो ये कॉम्प्लेक्स है ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। जो लार्ज सब यूनिट है वो अलग हो जाएगी, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाएगी, एमआरएनए जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। इस तरह से ये जो है पूरी प्रोसेस होती है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में क्या होगा, यहाँ तक तो ट्रांसलेशन हो गया, हमको एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिली। अब क्या होगी, उसकी ट्रिमिंग होगी। मैनी ऑफ द प्रोटीन्स आर इनिशियली मेड एज अ लार्ज, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, दे आर नॉट फंक्शनली एक्टिव। तो इस तरह के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल को या फिर जो प्रोटीन बना है वो प्रॉपर फंक्शन वाला प्रोटीन नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है, ट्रिम करना पड़ता है। तो ये कहलाता है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। Precursor proteins are cleaved in the endoplasmic reticulum or the Golgi apparatus. The other are cleaved in the developing secretory vessels. Zymogens are inactive secreted enzyme, including the proteases required for the digestion. So zymogens जो हैं वो inactive enzymes हैं, including the proteases required for the digestion. They become activated through the cleavage when they reach their proper sites of the action. वहां पे जाके एक्टिव हो जाते हैं, अगर प्रॉपर साइट पे पहुंच गए ये तो वहां पे जाके एक्टिव हो जाते हैं। एग्जांपल है पैंक्रियाटिक zymogen, ट्रिप्सिनोजन बिकम एक्टिवेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये ऐसे तो इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहां जाके ये क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। फिर है पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में दूसरा है, पहला तो था ट्रिमिंग, दूसरा था कोवेलेंट अल्टरेशन। पहला तो इसमें होता है फॉस्फोराइलेशन। ऑन हाइड्रोलिसिस ग्रुप ऑफ द सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन इंक्रीजेस और डिक्रीज द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स हैं जो भी, तो उसकी फंक्शनल एक्टिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं।
फिर है ग्लाइकोसिलेशन, पहला फॉस्फोराइलेशन हो जाता है, दूसरा है ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कार्बोहाइड्रेट अटैच टू द सेरीन और द थ्रियोनिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और द अमाइड नाइट्रोजन ऑफ द एस्ट्राजीन एंड लिंक। मतलब ये ग्लाइकोसिलेटेड मतलब कि इसमें एक कार्बोहाइड्रेट अगर ऐड हो जाए, अगर कोई प्रोटीन चाहिए तो वो बन जाएगा ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन, है ना। हाइड्रोक्सिलेशन, प्रोलिन एंड लाइसिन रिड्यूसेस, इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा तो ये क्या फॉर्म करता है, प्रोलिन लाइसिन रिड्यूस होकर कोलेजन फॉर्म करता है। अदर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कौन से हैं, विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ द ग्लूटामाइन रेसिड्यू ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, बायोटीन जो है सिग्मा अमीनो अमीनो ग्रुप्स ऑफ द लाइसिन रेसिड्यूज ऑफ द बायोटीन डिपेंडेंट एंजाइम, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन होगा। फिर अटैचमेंट ऑफ द लिपिड सच एज फ्रेंसाइल ग्रुप कैन बी एंकर प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन्स, ऐसे एसिटाइलेटेड, ये एक हो जाता है। तो ये इस तरह से ये फॉस्फोराइलेशन हुआ भाई, यहाँ पे सेरीन था, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया प्रोटीन में, तो ये हो जाएगा फॉस्फोराइलेशन। ऐसे ही टायरोसिन है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, ये हो गया फॉस्फो ग्लाइकोसिलेशन, ये कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया यहाँ पे। तो एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन जो है गैलेक्टोसामीन यहाँ पे बन गया। इस तरह से एस्प्राजीन में भी एंजाइम ग्लूकोसामीन यहाँ पे अटैच। तो ये क्या हो गया कि जो प्रोटीन बना वो ये जो प्रोटीन है उसमें क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट अटैच हो गया। फिर कार्बोक्सिलेशन हो गया, हाइड्रोक्सीप्राइसिक रेसिड्यूज, कार्बोक्सिलेशन। फिर बायोटिनेटेड एंजाइम जो है, इस तरह से फ्रेंसाइलेटेड प्रोटीन। इसके अलावा प्रोटीन डिजेनरेशन, डिफेक्टिव प्रोटीन for the rapid turnover are often marked for the destruction by the ubiquitin. The attachment of the small highly conserved protein called ubiquitin protein marked in the way in this way they are rapidly degraded by the cellular component known as proteasome. इनहिबिटर्स कौन से हैं, एरिथ्रोमाइसिन जो कि 50S राइबोसोमल सब यूनिट को इनहिबिट करता है, उसके फंक्शनिंग को। अगर कोई भी प्रोटीन जो है उसको अगर उसके फॉर्मेशन को रोकना है तो ये सारे एंटीबायोटिक जैसे कि एरिथ्रोमाइसिन है 50S राइबोसोमल यूनिट को करते हैं, क्लिंडामाइसिन 50S राइबोसोमल यूनिट को करते हैं, टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोमल सब यूनिट को, प्यूरामाइसिन अमाइनो एसिड टीआरएनए को, क्लोरामफेनिकोल देयर इज अ पेप्टाइडल ट्रांसफरेजेस को, डिप्थीरिया टॉक्सिन देयर इज अ इनिशिएशन फैक्टर नंबर 2 को करते हैं ये। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है ट्रांसलेशन की प्रोसेस ये यहाँ देखिए। डीएनए से जो है, डीएनए के थ्रू डीएनए का सिंथेसिस तो ये हो गया रेप्लिकेशन। अब डीएनए से जो है एमआरएनए बना, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन। और इस एमआरएनए से जो है वो प्रोटीन का सिंथेसिस, दैट इज द ट्रांसलेशन प्रोसेस है। mRNA provides information transfer by the triplet codon, in which pair with the specific anticodon contained in the amino acid tRNA। ये अमाइनो एसिड टीआरएनए में गई और अमाइनो एसिड टीआरएनए जो है वो बाइंड हुआ, पहले पी साइड से बाइंड हुआ, फिर ए साइड ब्लैंक थी, वो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर साइड थी, तो अमीनो एसिड साइड को एक्सेप्ट करता रहा, और इस तरह से यहाँ से ई साइड पे जो ट्रांसफर हो जाता था और ट्रांसफर होके ये रिमूव हो जाता था, जिसमें अमीनो एसिड नहीं थे वो साइड, वो टीआरएनए रिमूव हो गया। और यहाँ पे जो है चेन जो है, जो पी साइड में चेन जो है बढ़ती जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इंक्रीज आउट होती जाती है। फंक्शनल प्रोटीन इज अ फंक्शनल मॉलिक्यूल consisting of the sequence of the amino acid, or that is visualized as this. अमीनो एसिड टीआरएनए एज अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो है स्पेसिफिक टीआरएनए जो है यहाँ पे आके बाइंड होता है। So it is all about the translation process. I hope you are understand this slide. So thank you very much.
Thank you very much.